Hello, you all, my lovely buddies, and a very warm welcome to you all on this amazing platform. And I, your English educator, Pooja Sharma, here have something for you. What I have, that is a poem. Yes. देखो इससे पहले हमने एक chapter read किया and it was all about freedom fighter. So it brings us to know that how essential and how much importance of freedom is in our life, right? So similarly, we are becoming selfish. हम सिर्फ अपना अपना ध्यान रखते हैं that okay हमने freedom पा लिया, हमको ना कुछ भी कोई कुछ ना बोले, लेट आएंगे लेट जाएंगे, कोई भी कुछ ना बोलो. Just imagine of that kind of life, that if you are caged, if you are like locked in a room before your exams and it is going to be forever, like right, आप तो एग्जाम के एक महीने तक भी लॉक नहीं रह सकते हो कि नहीं नहीं थोड़ा सा बाहर जाके सांस लेके आना है. बाहर क्यों जाना है? Like even in office we work, so what it happens that after certain of time we feel like कि अरे बाहर जाके सांस लेके आना है ना. So how you feel if you are taken away from your best place and being caged. So यही सारी चीजें हम बात करेंगे in this poem, and the name of the poem is, you can see, A Tiger in the Zoo. Okay, here I have a question, and very prominent question. Do you really feel that the best place to place a tiger is to keep the tiger in the zoo? मैं रिपीट करती हूं मेरा क्वेश्चन एंड आई आस्क यू, क्या आपको लगता है कि टाइगर को जू में रखना चाहिए? क्या वही उसके लिए बेस्ट प्लेस है? So I hope that you have given the answer and it must be no, right? Yes. तो जब हम अपनी जिंदगी के साथ में, अपनी फ्रीडम के साथ में हम लोग नहीं कर सकते हैं कुछ भी, लाइक थोड़ा बहुत भी मोल्ड नहीं कर सकते हैं, we don't want anyone's interference in our life, then how we can do with the other animals? So this is a poem, and which is a thoughtful poem which makes us realize that how we are encroaching in animals' life, and what we, because of us, they are being going through, they are suffered for. So this is the picture in your book as well. हमारी जो book है उसके अंदर यही picture है, A Tiger in the Zoo, and let's talk about the author. First of all, I salute this author to have this point of view and making the students, the children of this era understand about the importance of freedom of animals as well. So ये इनका नाम क्या है? His name is George Leslie Norris. आपको सिर्फ Leslie Norris याद करना है तो भी कर सकते हैं, George Leslie Norris याद कर सकते हैं. Anyway, you have to remember the name of the poet. Okay, why it is important? You know that even in the questions it is asked that from the point of view the author. So when you don't write the name of the author, it feels like कि आपको author का नाम ही नहीं पता था. So अगर point of view of the author पूछा जाता है तो आप directly लिख सकते हैं that from the view of George Leslie Norris. तो आपका highlight करके जो आप लिखते हो, underline करते हो, cap में लिखते हो, वो सब यहाँ से जो टर्म्स हैं वही आपके हेल्पफुल रहती हैं. So he was born on 21st May 1921 and he died on 6th April 2006. He was a prize-winning Welsh poet and short story writer. So आपको इनके बारे में याद रखना है that he won prize and he was a Welsh poet as well as ये short story writer थे. मतलब जो बड़ी बड़ी सी ना वैसे ना लिख के, बच्चों को जो छोटी छोटी सी short poems पसंद आती है वैसे ही इन्होंने बहुत सारी poems भी लिखी है. And here is he. Let's move ahead with the introductory part of our poem. क्या कहता है poem? This poem it talks about the contrast of a tiger in the zoo with the tiger in the natural habitat. Simply है, you will compare every time everywhere कि एक tiger है जो बहुत लंबी लंबी छलांगे लगाना पसंद करता है, खुले में रोर करता है और मतलब अपने तरीके से जिंदगी जीते हैं, और उसी को ही अगर हम एक not from the natural habitat हम उसे लेकर के एक zoo में बंद कर दे, केज में बंद कर दे, तो उनका लाइफ कैसे चेंज हो जाता है. मैं यहाँ पे क्वेश्चन अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू आफ्टर रीडिंग दिस एंड यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो ये पोएम कंट्रास्ट क्या करती है? एक तो जू वाली लाइफ और एक नेचुरल हैबिटेट वाली लाइफ. किसकी? टाइगर की. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड अगेन बैक टू द जू. मतलब ये बार बार स्टैंजास, देयर आर 5 स्टैंजास. तो कभी हमको लेके जाती हैं जू में, कभी बताती है अबाउट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द टाइगर, फिर अगेन तो ये कंपैरिजन ऑल ओवर द पोएम चलता रहेगा. जू में ही हैज नो फ्रीडम. यू ऑल नो कि जब जू में रहेंगे तो कोई फ्रीडम नहीं होगी, और नेचुरल हैबिटेट में वही उनकी फ्रीडम है. इवन ही इज द
वन जो लोगों को डरा सकता है ना, टेररिस्ट वाला जो होता है ना, वो वैसे हमको क्रिएट कर सकता है, हमें फील स्केयर्ड वाली फीलिंग आ सकती है, लाइक दैट. ही इज केप्ट इन अ सीमेंटेड सेल बिहाइंड द बार्स. बिहाइंड द बार्स मतलब केज में रखना, जेल के लिए भी यूज किया जाता है बिहाइंड द बार्स. अगर आप दिस यू यूज दिस वर्ड्स टू टेल दैट ही इज बिहाइंड द बार्स मीन्स दैट इज ही इज प्रिजन्ड. ओके, ही फील्स एंग्री एज वेल. ही इज ऑलवेज, यू कैन सी he is not used for the poet here, he is used for the tiger. Okay, you know, yeah, in your childhood you must have heard about that he is used for male and she is used for female, and it is used for animals and non-living things. But gradually we got to learn about the things that even they are also having their life. So what is written, he is written for the tiger. So he feels angry and frustrated and helpless. This is all about in this poem. So this poem starts like this. I will read the poem where I feel that आपको इसका हिंदी मीनिंग भी बताना है. I would definitely tell you about that. As well as हम क्या करने वाले हैं, हम इसका detailed description, I will tell you about the theme, the rhyming scheme, and everything with the question answers at the end. So you still remain till the end of the session and do like and share this session. Let's get started. He stalks in his vivid stripes. This is called a stripe. See, if the spelling is this is called a strip and this is stripes. The pronunciation changes, and when you are connected with me and you are in my classes, आपको अच्छे से pronunciations क्या कहाँ पे हमें नए अगर pronunciations add on हुए हैं तो मैं वो सारी चीजें बताऊंगी. So this is strip and this is stripes. Okay, so he stalks in his vivid stripes. Vivid means बड़े बड़े. Okay, the few steps of his cage. अब उनके पहले तो ये स्किन के बारे में बताया गया है, उसके बाद में इनके ये few steps मतलब कि छोटे छोटे से कदम ले रहे हैं. उनका छोटा सा केज है. केज means like this. You can see this is a cage here, and if you have ever been to zoo तो आप इसे बहुत अच्छे से relate कर पाएंगे. If you have ever been to zoo तो आप बहुत अच्छे से relate कर पाएंगे. And yes, I remember that I was to ask you something here at the end. So my question was कि you don't like to go to certain place. आप कहीं पे भी, जैसे कोई लोग अपने ननिहाल जाना पसंद नहीं करते हैं, या पर्टिकुलर कोई एक ऐसे रिलेटिव होते हैं उनके यहाँ पे जाना पसंद नहीं करते हैं, राइट? दे डोंट फील, बाय बिकॉज दे आर लाइक कि ऐसे मत बैठो, यहाँ मत, ये मत करो, वो मत करो. तो आपको ऐसा एकदम सर्टेन जगह पर बैठ के बस ऐसे चुपचाप बैठना है, ऐसा करके. इवन देयर आर सम टीचर्स एज वेल दैट यू डोंट लाइक टू अटेंड देयर क्लासेस बिकॉज वो एकदम आपको अलग ही जगह पर लेके चले जाते हैं. सो माई क्वेश्चन हियर इज दैट even for like few days or few hours you can't survive, then how you can think of an animal that can be forever taken away from their natural habitat. उन्हें हमेशा के लिए अपने natural habitat से, जहाँ पे उनका actually रहना करना सर्वाइवल है, वहां से हटा करके हम उन्हें जू में रख दें. मैं कहूँ अगर आपको 4 दिन ननिहाल, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल, हालांकि सबको, मुझे तो लगता है कि ननिहाल में रहना बहुत पसंद होता है बिकॉज वहाँ पे मम्मा हमें डांट नहीं सकती हैं, है ना. तो बट एक एग्जाम्पल यह है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हमेशा के लिए रहने को बोल दिया जाए और आपके ऊपर क्रूएलिटी होगी आपके ऊपर. लोग आपको आएंगे जाएंगे, पोक करेंगे आपको, और हो सकता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो आए और वो आपको पनिशमेंट भी दे. आप नहीं चाहते हो एंटरटेन करना, लेकिन वो बार आएंगे आपके ऊपर, लाइट वाइट करेंगे, ऐसा करके. सो हाउ इट फील्स यू कैन फील इट. इफ यू डोंट फील इट तो ये पोएम आपको कहीं पे भी टच नहीं करेगी. एंड दिस इज अ टची poem actually it is very touchy. Once when I was like teaching this, I and my all the students, we were so overwhelmed that we got emotional because अगर आप फील ही नहीं कर पाओगे तो ये सारी poems बस है, पढ़नी है, एग्जाम क्लियर करना और चल देना है, वो वाली है. But it is not included, but for the reason it's included just to know and just to make you realize that how important animals are as well. Let's move ahead. So on pads of velvet quiet in his quiet rage. So here is the first paragraph and it says that he stalks in his vivid stripes. मतलब उनके शरीर पे क्या लगी हुई हैं, यहाँ पे you can see that बहुत लंबी लंबी सी stripes लगी हुई हैं, and कुछ ही steps ले पाते हैं अपने केज में, मतलब थोड़ा सा ऐसे चलेंगे because it's not wide. ये बहुत बड़े खुले एरिया में रहने वाले जानवर है और आपने इनको क्या कर दिया, केज्ड कर दिया है, इन्हें पिंजरे में बंद कर दिया. If you want to, I can hear some sound. I don't know what of that. So it's pinjra. Okay. On pads of velvet quiet. What is called as pads? Okay. जो उनके
हम बात करते हैं पाँव हैं, उनके जो पाँव है ना, आपने सुना होगा टाइगर्स जो होते हैं ना, उनके जो पाँव होते हैं, ये इनकी जो पाँव की जो आवाज होती है, इट्स रियली हर्ड, है ना, ज्यादा सुनाई नहीं देती, बिकॉज ये बहुत ही सॉफ्ट, लाइक स्पॉन्जी, मतलब एकदम ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट से ऐसे ऐसे होते हैं। तो दैट्स व्हाट रिटन है कि ये बहुत ही वेलवेटी होते हैं। एंड हिज क्वाइट रेज, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। नाउ द फर्स्ट इज अबाउट द जू, first is about the zoo and the second one is about natural habitat. So for natural habitat I will write NH. Okay, तो second one क्या बताता है? Second one बताता है कि instead of being caged, वो कहाँ होते? He should be lurking in shadow, मतलब ये बाहर होते, अपने natural habitat में होते, जहाँ पे इनको होना चाहिए वहाँ होते, sliding through the long grass, हम कह सकते हैं लंबी लंबी सी जो घास होती है ना, उसके बीच में से कैसे, आपने अगर मूवीज देखी हैं या नेशनल ज्योग्राफी चैनल आपको देख, खाना खाते हुए, एक तो लोग, एक कैटेगरी के लोग होते हैं जो खाना खाते हुए तारक मेहता देखते, एक कैटेगरी के लोग होते हैं जो खाना खाते हैं हमेशा ये नेट जियो या फिर डिस्कवरी चैनल जरूर से देखते हैं। सो इफ यू वॉच डिस्कवरी चैनल है ना, तो यू हैव दैट ग्लिम्सेस एंड यू कैन जस्ट थिंक ऑफ दैट, आपको ऐसे क्लिक करेगी कि हाँ ऐसे मैंने देखा था। तो बहुत सारी घास है, घास के बीच में से फ्रॉम द ग्रास वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो दैट इज द मोमेंट इट इज शेयरिंग विद अस नियर द वाटर होल। वाटर होल मींस यहाँ पे वाटर बॉडीज से है, वाटर बॉडीज कैन बी लाइक पॉन्ड, है ना, पॉन्ड को भी कहा जा सकता है कि वाटर बॉडी में हम क्या बात कर रहे हैं, पॉन्ड छोटा सा पानी का जगह है जहां पे वो क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। और वो वहां पे क्यों घूम रहे हैं, बिकॉज दे नो, क्योंकि टाइगर को पता होता है कि अभी ये टाइम है जब डियर आएगा और डियर आके पानी पिएगा एंड आई विल झपट्टा ऑन देम, मतलब मैं क्या करूंगा, उसको झपट्टा मार दूंगा और मैं अपना पेट पूजा कर लूंगा। सो द वेयर द प्लम्प डियर आल्सो पास फ्रॉम देयर, वो डियर भी पास होते हैं, तो उसके आसपास में ये क्या करते हैं, लर्क अराउंड करते हैं, घूमते फिरते हैं। मूविंग अहेड, द थर्ड पैराग्राफ हियर, द थर्ड पैराग्राफ सेज ही शुड बी snarling around the houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब ये अगेन द थर्ड है, वो किसके बारे में बता रहा है, इट इज टेलिंग अस अबाउट द नेचुरल हैबिटेट, कि उसे एक्चुअली कहाँ होना चाहिए था, उसे तो गांव में, लाइक मतलब ये क्या करना चाहिए था, ये तो घरों के आसपास में कहीं पे घूमते हुए लोगों को डराते हुए, टेरराइज करते हुए होना चाहिए था, जहां पे एट द जंगल्स एज, कहां पे, जंगल के एज पे, एज मींस किनारा, द बाउंड्री पार्ट ऑफ द जंगल, तो वहां के आसपास के जो घर होंगे उन घरों के आसपास में कभी ना कभी वो दिखने वाला टाइगर है ये, और वहां के लोग उसको देखते ही अपने घरों में बंद हो जाते हैं, सिमिलर टू दैट। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, यू कैन सी fangs are the long teeth, fangs is what, fangs are the long teeth of the animal। आप किसी इंसान को मत बोल दियो कि तेरे तो फैंग्स है ना, जैसे आप देखते हो ड्रैकुला एंड ऑल के, लेट मी बी हर, ड्रैकुला एंड ऑल के देखते हो ना, लंबे लंबे से यहाँ से दांत बाहर निकले हुए होते हैं, इवन ऑफ स्नेक्स एज वेल, तो इनको क्या कहा जाता है, फैंग्स कहा जाता है। ओके, एंड हिज क्लाउज, यू नो claws and paws, you know that very well। तो paws and claws means क्या कह सकते हैं हम, नाखून कह सकते हैं, तीखे तीखे से जो नाखून होते हैं, for that we can say that, okay। and terrorizing the village, और ये क्या कर रहा होगा, he must be terrorizing the village, मतलब कि जो गांव के लोग हैं और जो गांव है वहां पे अपना आतंक छाया हुआ होगा, इसका अपना आतंक फैलाया हुआ होगा। तो मतलब डेफिनेटली अगर ये नेचुरल हैबिटेट में होता तो इट वुड बी देयर, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब यहाँ पे अगेन जू का पार्ट आ चुका है कि लेकिन ये कहाँ है, अभी ये कंक्रीट सेल के अंदर बंद हो चुका है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसकी जितनी भी ताकत है वो कहाँ है, बार के पीछे। बार मींस हम बात कर रहे हैं किसकी, केज की, कि इसकी जो जितनी भी ताकत है वो कहाँ है, केज के पीछे बंद हो चुकी है। एंड स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वो क्या कर रहा है, बस केज की लंबाई देख रहा है कि कितना सा केज है, और अगर कोई विजिटर आएगा तो मुंह फेर के ऐसे बैठ जाएगा कि मेरे को क्या लेना देना, मेरी तो जगह है नहीं यहाँ पे, लाइक दैट। ओके, सो यू कैन फील दैट इफ यू हैव सीन समटाइम्स और एनकाउंटर्ड समटाइम कि भाई टाइगर जो होते हैं, हाउ दे फील व्हेन दे आर नॉट अलाउड टू डू व्हाट दे आर फॉर, है ना, उनको जो करना है उनको नहीं करने दिया जाता है, उनको एकदम केज के अंदर बंद कर दिया जाता है। आते जाते विजिटर्स उनको कोई तो कुछ ना कुछ मारता है ना, ऑलवेज वी हैव सीन कि कोई ना कोई तो पत्थर निकालेगा, आसपास में से कुछ ना कुछ ढूंढेगा और मारेगा। नो, हाउ आपको कैसा फील होगा इफ समबडी लाइक कम्स टू यू एंड मार दे। अगर ऊपर से चिड़िया उड़ती हुई भी अगर शिट कर देती है ना, आपके मुंह से दो तीन तो अच्छे से बहुत ही प्यारे प्यारे से शब्द निकल जाते हैं, है ना, जबकि आप तो वो चीज सहन नहीं कर सकते, और एक अच्छे से प्यारे से आराम से बैठा हुआ कोई भी जानवर है, आप उस जू में जाके उसको छेड़ के आते हो। देन व्हाट वी डू, वी गिव देम टू ईट एज वेल। अब आपको पता नहीं है, हम चिप्स खा रहे होते हैं, हमने चिप्स ही दे दी उनको, हमने जो खाना हो रहा था या जो भी चीज होती है हमारे हाथ में, हम कुछ नहीं तो रैपर ही दे देते हैं। इवन मतलब आई डोंट नो हाउ अडल्ट भी ऐसा काम करते हैं। तो ये सारी चीजें
क्या है, सही नहीं है. We should not do this. This should not be in practice. Now he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Again, this is about of his when he is placed in the zoo. हाय रब्बा, zoo का Z अच्छा भी नहीं लग रहा. When he is placed in the zoo, कि lastly बताते हैं कि zoo में क्या हो रहा है. He hears the last voice at night. मतलब दिन भर तो किसकी आवाज़ें सुन रहा है. He is listening to the voice of the visitors. They are coming and they are just calling. कुछ भी करके आवाज़ें करके उसको बुला रहे होते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. And he hears. And lastly, ये पूरे टाइम में he, his किसके लिए आया? You know it very well. It is used for tigers. So tiger के लिए use हुआ. He heard the last voice at night. रात को आखिरी आवाज़ सुनता है वो. And the patrolling cars. The last voice is of patrolling car. अब अगर आपको पेट्रोलिंग कार्स नहीं पता है, लेट मी टेल यू, आपने देखी होगी गश्त मारती हुई जीप पे निकलती हैं, जीप पे बिल्कुल है ना, गश्त मारती हुई गाड़ियां होती है पुलिस की, एकदम श्यूं करके आती है, निकलती हैं. और फिर हम देखते हैं कि दैट इन दैट प्लेस इफ देयर पीपल गैदर्ड, जैसे कि कोविड के टाइम पीरियड की बात करें, इफ पीपल लाइक 2 or 3 पीपल दे आर इन अ ग्रुप एंड दे आर गैदर्ड समवेयर, तो वहां पर पेट्रोलिंग कार जाती है और देखती है और फिर उनको बोलती है कि भाई जाओ अपने अपने घर जाओ, यू डोंट यू नो अबाउट दिस कंटेजियस थिंग्स एंड ऑल. तो एक पेट्रोलिंग कार्स का मतलब क्या होता है, दे पेट्रोल करते हैं. मतलब यहाँ पे देखो स्पेलिंग इज डिफरेंट, इट इज नॉट PETR. ओके, PET वो वाला पेट्रोल नहीं है जो तुम फ्यूल की तरह यूज करते हो. इट्स पेट्रोलिंग मतलब कि गश्त मारना, घूमते फिरते देखना कि सब चीजें अंडर कंट्रोल है या नहीं है. सो इट्स पेट्रोलिंग कार इज व्हाट दे आर डूइंग, लाइक दैट मीन्स द ones who take care of the animals in the zoo, they are thinking and they are just overlooking and investigating that everything is at their place. Is there any injury to any animal, like that. Okay, and stares with his brilliant eyes. और वो कौन स्टेयर कर रहा है? अब जाके रात को जब शांति हुई है तब वो स्टेयर कर रहा है at the brilliant stars. टाइगर जो है रात को शांति में, they are feeling peaceful now, और वो स्टेयर कर रहे हैं किसको? at the stars as well. If you have seen any animal at night, है ना, night in the evening, from the evening part to the night, अगर हम रात को कभी देखते हैं ना जानवर, उनकी आंखें ना अलग से चमकती हैं, अलग सी ही चमकती है लाइट जब उनकी आंखों पे जाती है. So that is the way we can say that he stares, घूरते हैं with the brilliant eyes. उनकी जो eyes हैं वो कितनी brilliant है, we can see by the sparkles and by the brightness of their eyes, and that is the brilliant stars. और वो किसे देख रही है? brilliant stars को देख रही है. This is all about, and it is written by whom? You can tell me the name in the comment section as well, because you have to learn the name of the poet, and the name of the poet is Leslie Norris. Okay, जिसका पूरा नाम भी मैं आपको बता चुकी हूँ. You should always learn all the names. Okay, poet names are very much important, and about the poet and the author, it's also important for you. So let's move ahead and do this part, that is glossary part. Okay, so in the glossary part, what few words I have to tell you, that is stalks means stem, stripes means belt. Here it is not the belt, stripe means these lines are the stripes. Okay, which are in the form of like wide length. Lurking means छुपाना, खुद को इधर उधर छुपाना, हाइड करना. एंड स्टॉकिंग मीन्स फॉलोइंग, स्टॉक करना मतलब फॉलो करना. सो दीज आर द वर्ड्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड आई हैव टोल्ड यू. मूविंग अहेड, आई हैव, बिकॉज बच्चों आपका लाइक हमेशा रहता है दैट मैम प्लीज टेल अस अबाउट दिस थिंग दैट थिंग. दो मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बता देती हूँ, स्टिल यू आस्क मी, राइट? सो आई हैव दिस पार्ट हियर, and I hope that you are going to love this. Theme is what? Freedom versus captivity. Freedom versus captivity means क्या होता है? Freedom मतलब आजादी, captivity मतलब कि आपकी आजादी छीन ली गई है और आपको बंद कर दिया गया है. Rhyming scheme is they are ABCB and ABCD. देखो rhyming scheme के बारे में एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, how you can find it out. देखो stripes, cage, quiet and rage. Okay, तो ABC. ओके, देन अगेन केज एंड रेज. तो यहाँ पे देखो ये स्ट्राइप्स है, फिर केज आया, हमने इसको बी किया. लेट मी चेंज द कलर ऑफ हेयर. सो यहाँ तो हमने क्या किया? ए करा, क्योंकि स्ट्राइप्स है. ये किससे होगा? स्टार्ट ए से हो गया. चलो हमने इसको बी कहा क्योंकि स्ट्राइप्स और केज आपस में राइम नहीं कर रहे, तो ए बी. देन क्वाइट इज सी, बट केज इज राइमिंग विद रेज, केज रेज. तो ए बी सी बी, इन दैट वे यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो लेट्स डू दिस पार्ट. सो राइमिंग स्कीम you always remember and write it as well. Poetic devices. What are the poetic devices here used? I'll tell in detail in my classes as well on app कि metaphor क्या होता है, personification क्या होता है, alliteration क्या होता है, imagery क्या होता है, symbolism क्या होता है. But here you just learn by heart that metaphor का use हुआ है, personification का use हुआ है, alliteration का use हुआ है, imagery का use हुआ है, और साथ ही साथ में symbolism का use हुआ है. Now
The next thing is, are you all ready for the rapid fire round? Tell me in the comment section quickly about the rapid fire round. Are you all ready for that or not? I hope that you all are ready, because you have been so long here just to answer the questions which I'm going to ask you. So यहाँ पे very first question is, the poem draws a contrast between, किस किस के बीच में contrast है? Animals और human beings के बीच में, tiger in a zoo or tiger in a forest, and tiger in a zoo and human or tiger in forest. So I can say that you have must answered it already with very question easily. That is a tiger in a zoo and tiger in a forest. Okay, so this is the part you find it out the answer in that easiest way. Next question is, the main contrasting idea which suggests about by the extract is that of, what's the idea? So here you have got the theme as well, here you got the idea as well, central idea. You ask, देखो मैं theme बोल देती हूँ तो students say that मैम आपने central idea नहीं बताया. Somewhere central idea and theme like goes with each other. दोनों एक ही जैसी हो जाती हैं चीजें when we go through all these parts together. Okay, so the option A is strength and weakness, B is nature and culture, C is beast and mortals, and D is confinement and freedom. So option D here is the correct. I hope that you have given the correct answer. Confine करना मतलब कि बांध देना, छोटी सी जगह में compact place में रख देना, and freedom is you know very well. आपकी freedom के साथ में हम वो क्या लिखते हैं? तुम लोग भी लिखते थे पहले शायद, आई डोंट नो व्हाट वी राइट ऑन लाइक आई प्रोफाइल्स, माय लाइफ, माय रूल्स, माय फ्रीडम, लाइक दैट, है ना? सो we are very much peculiar about our freedom, but when it comes to animals, we don't care. That's very bad. Now, the next question and the third question is, the a tiger's presence in the natural habitat is important. Natural habitat में क्यों जरूरी है ये आपको बताना है. From this poem, we get to know about the example of deer as well. Deer का एक example देखिए what the poet wants to tell us. So, A, its glory, it helps maintain the vegetation, it gives hunters a wild chase, or it maintains the balance of the food चेन. ओके, डियर का एग्जाम्पल क्यों दिया है? बिकॉज ये फूड चेन का प्रोसेस है. इफ यू हैव अभी तो पढ़ाई होगा डेफिनेटली साइंस में, तो आपने फूड चेन के बारे में जानना ही होगा कि भाई कौन किसको खाता है, फिर कौन किसको खाता है, फिर कौन किसको खाता है, ऐसे खाते 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 फूड चेन बन जाती है. सो दैट इज अबाउट हर. सो व्हाई अ टाइगर must be in a natural habitat to maintain the balance of food chain. इसीलिए food chain का balance बनाए रखने के लिए इसीलिए example भी दिया है of the deer as well. And the next question with the answer I have, because some students might feel कि हमको आंसर कहाँ मिलेगा, है ना? तो आंसर भी यहाँ दे देंगे, हमको दिक्कत नहीं है. I just want you to do a lot of practice. जब तक आप practice नहीं करते हो, you feel it confidence, lack of confidence, है ना? But आप practice करो, write your own answers. Even you can get the hint from here as well. अब इतना सारा याद नहीं होगा तो make it compact और आप अपना आंसर बना सकते हो. Don't worry. Okay, what does the poet convey through the poem? Everything can come through this क्वेश्चन. आपके इस चैप्टर में से, सॉरी इस पोएम में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, ये आंसर आपका कहीं पे भी फिट हो सकता है. यू कैन राइट दिस आंसर एनीवेयर, एनी टाइम. देखो, द पोएट ट्राइज टू एक्सपोज द मिजरेबल लाइफ लेड बाय द एनिमल्स इन द जू. मतलब वो बताते हैं, एक्सपोज करते हैं दैट हाउ एनिमल्स आर ट्रीटेड इन द जू एंड व्हाट दे एक्चुअली फील. He compares the life of the tiger in the zoo and its natural habitat. The animal have the right to freedom as well and should not be caged. They should be allowed to run free in the wild. So मैंने क्या कहा? That's why I am also like always concerned about your future and your सब्जेक्ट कंसर्न्स, राइट? तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, मैं ऐसा क्वेश्चन आपको ऑलवेज प्रोवाइड कर दूँ जहां पे आप इस आंसर को कहीं पे भी लिखें तो यू विल गेट द आंसर, राइट answers. Okay, so I have got everything to you, and you must also have done what? Like and subscribe and definitely commented it and share जरूर से करिएगा इस सेशन को. On this note, I'm just going to say, if you are an animal lover or not, but you must respect everyone's freedom. Okay, so thank you so much. Bye bye.